Okay, for some reason it's not working with this picture. Maybe some issue with this uploading. Upload successfully uploaded. Maybe it will reflect in a while. So we can do this and upload a picture for the profile. Still some members are joining in. Now you can see that it's reflecting. Okay, so this is one thing, and then we can see this user is member of one group. If he has access to any application, assigned roles we can see, and assigned licenses we can see. And if we click on the below on the bottom, like edit properties, still the members are joining. Yes. All right, so just for new members who recently joined, we went to Entra ID, Microsoft Entra ID in Azure portal. We went to users. Inside the users, inside the Microsoft Entra ID in Azure portal, we just went to one user, admin 3, which we created yesterday. Sometime it will take time to load, or sometime Azure portal doesn't respond, so you can maybe refresh in that case. So now this loads, and we just change the profile picture of this from here. This is just to recap the members who joined recently, and we can see that this user is member of this many groups. Okay, applications, assigned role, everything we can see on the users profile here. So account is enabled. If there is any B2B invitation, we can see here, and we can edit the properties from here. And you can see as when we created this user, we have gone through these all properties of this user, like job information, contact information, and all those. One key property here I just would like to highlight is the usage location. If we define a usage location for this user, in that case that user will be limited to that particular location. So let's say if he's supposed to work in India, then I can maybe put India. What is this? First letter only it's checking. IJK, Iraq, India. So I can select this location, and now this user will be able to work from this location, not from other locations. So IP restriction sort of thing. And then if we have hybrid connection, means if user is working from on premises, also I can search for premises and allow that user to access from there. So these are some of the options for this user, and all the properties I can see from here. Okay, identity related information I can, and even I can change the user membership later on as well. Okay, so this is all about user. I'll just cancel it. Okay, and here we don't have advanced licensing, so these are like premium license feature which you can use. However, as a Azure admin, you don't need to go in that deep dive, because mostly Office 365 admin will take care of this part. Okay, so this is all the properties which we have, and above you can see, like, you can delete this account, you can refresh, and let's see, some member is still joining in. ठीक है, ओके दयानंद, आई विल स्पीक इन हिंदी एज वेल. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देख पाएंगे हम, इसका पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर पाएंगे. ठीक है, सो यूज़र वी हैव एंट्रा आईडी यूज़र बना हुआ है, उसमें हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं. अगर इस यूज़र ने अपना पासवर्ड लूज़ कर लिया है तो वी कैन रीसेट हिज पासवर्ड.
and we can provide that password, and again वो अपना पासवर्ड को अपने हिसाब से चेंज कर पाएगा once we reset it for him. ठीक है, अभी अब देखते हैं इसके रोल्स, जैसे कस्टम सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, दिस इज लाइक प्रीमियम फीचर एंड रिसेंटली इंट्रोड्यूसेस. सो एक मिनट, इसको यहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो फॉर द असाइनमेंट, एट्रीब्यूट असाइनमेंट वी कैन डू एज यूजर, एंड वी विल बेसिकली बी असाइनिंग द रोल्स. तो रोल्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ परमिशंस होती है. ठीक है, तो अलग अलग परमिशंस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. रोल असाइनमेंट, यूज़र को हमें रोल असाइनमेंट देना है, जैसे कि अगर उसको बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं और ये रोल उसको असाइन हो जाएगा. इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ नज़र आएगा इस तरीके से. ठीक है, और थोड़ा रोल को आने में टाइम लगेगा, बट यस. फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में हम ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो लाइक बंच ऑफ व्हाट यू कॉल परमिशंस और ग्रुप ऑफ रोल्स. तो उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. कोई भी रोल हम बना सकते हैं और उसको ग्रुप को हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ हमने बना रखा है, जैसे ये वाला ग्रुप बना रखा है, इसको हम ऐड कर सकते हैं. सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. तो ये हो गया. फिर इसका ग्रुप हो गया. अगर उसको हम किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं या मल्टीपल ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जैसे फाइनेंस का यूज़र है, साथ में इसको सेल्स का परमिशन भी देना है, तो हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो ये कोई सा भी, जैसे एचआर ग्रुप है हमारा या कोई भी ग्रुप है, उसको हम ऐड इन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके साथ में वो मल्टीपल ग्रुप का मेंबर हो सकता है. जो भी परमिशन, जो भी रोल उस ग्रुप को असाइन हुआ है, वो हम यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे फाइनेंस यूज़र का ग्रुप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, आई एम गोइंग टू दैट ग्रुप, एंड अगर इस ग्रुप में कोई रोल या एडमिनिस्ट्रेटर असाइन किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र को असाइन हो जाएगा. ठीक है, ये मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा. आई जस्ट गो बैक. ठीक है, तो ये वाला ग्रुप वाला पोर्शन था. अगर हमारी कोई कंपनी में एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं. लाइसेंसेस अवेलेबल हैं, अगर ऑफिस 365 लाइसेंस या शेयर पॉइंट लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस अवेलेबल है, वो लाइसेंस हम, मेरे केस में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि कोई भी लाइसेंस नहीं है मेरे पास. ठीक है, और लाइसेंस मैनेजमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे जाके हम लाइसेंस भी मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये आपका जो एडमिन होगा, बेसिकली ऑफिस 365 का एडमिन जो होगा, वो लाइसेंसेस प्रोक्योर करना, उसकी बिलिंग करना, वो सब यहाँ देखेगा. तो हमें माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री लाइसेंस ही मिला हुआ है, वो लाइसेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं. दैट्स इट. तो लाइसेंस मैनेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ से आप लाइसेंस को मैनेज कर सकते हैं. यहाँ पे भी आप वही यूज़र और वो सब देख पाएंगे. जैसे एक्टिव यूज़र्स हैं आपके, तो आप सारे यूज़र्स यहाँ देख पाएंगे. ठीक है, इनको अगर कोई लाइसेंस असाइन करना है तो वो लाइसेंस भी आप ऐसे यहाँ से असाइन कर पाएंगे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी आपका एडमिन सेंटर है, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर है, उसको आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे यूज़र को. दीज आर लाइक वर्किंग टुगेदर. तो अगर ये लाइसेंस मुझे यहाँ असाइन करना है, सो दिस चेंज इज़ बीइंग रिसेंटली डन बाय द माइक्रोसॉफ्ट. जैसे अगर मैं एज्योर में जाता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने ये फीचर यहाँ से हटा दिया है, पहले यहाँ हुआ करता था. ठीक है, सो कुछ चेंजेस होते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो इस तरीके से जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये एडमिन सेंटर को दे दिया है इन्होंने काम, बेसिकली 365 एडमिन को दे दिया है लाइसेंस वाला रोल जो है. ठीक है, तो वो यहाँ से जो भी लाइसेंस है वो दे सकते हैं. ठीक है, मेल से रिलेटेड अगर कुछ है, आपका एक्सचेंज सर्वर है, वन ड्राइव से रिलेटेड, तो ये अगर डिवाइस से रिलेटेड परमिशन देनी है वो. ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड ये सब ये एडमिन मैनेज कर सकता है. ब्लॉक साइन इन, जैसे साइन इन के लिए ब्लॉक करना है, डिसेबल करना है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं. तो कुछ काम यहाँ से 365 एडमिन भी कर पाएगा. ठीक है, एंड वी विल हैव बेसिकली दिस इज़ अवेलेबल 3 प्लेसेस. तो अगर आप देखते हैं, हमने एज्योर पोर्टल से किया था, एज्योर पोर्टल से हमने ये यूज़र को देखा. ठीक है, अगर मैं बैक जाता हूँ, लेट्स सी, आई गो टू होम एंड आई गो टू एंट्रा आईडी अगेन. तो एंट्रा आईडी में मुझे ये सारे यूज़र्स मिल जाएंगे. ठीक है, ये यूज़र मुझे ऑफिस 365 एडमिन में भी मिल रहे हैं, और ये यूज़र मुझे एंट्रा आईडी में भी मिल रहा है. ये एंट्रा आईडी एडमिन सेंटर होता है जिसका लिंक होता है
intra.microsoft.com। तो 3 तरीके से आप यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इंट्रा एडमिन सेंटर है जो यूज़र को मैनेज करने के लिए। एक आपका हो गया ऑफिस 365 एडमिन सेंटर, जो कि आपका लाइसेंस और यूज़र्स को भी आप यहाँ से लाइसेंस दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया एज्योर। अगर आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एज्योर से रिलेटेड यूज़र्स या अगर यूज़र मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में देखना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो 3 प्लेसेस आर लाइक आइडेंटिकल बट विद डिफरेंट पर्पस, ठीक है। ये आपका ऑफिस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, ये आपका एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये आपका एंट्रा आईडी एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने कुछ एंट्रा आईडी की स्पेसिफिक लाइसेंसिंग ले रखी है तो यहाँ से आपको यूज़र बाकी मैनेजमेंट या इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम एज्योर पे ही चले चलते हैं। एज्योर पे हमने ये देखा कि ये इस तरीके से यूज़र को हम मैनेज कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं। यस अंशुल, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, ये 365 एडमिन सेंटर में कैसे लॉगिन करना रहेगा अगर सर खोलना है तो? यहाँ पे आपको जाना है admin.microsoft लिखना है, admin.microsoft.com, ठीक है सर। ठीक है। और एंट्रा में जाना है तो entra.microsoft.com, और पोर्टल तो अपना ही है, portal.azure.com, ठीक है। ये तीनों तरीके, ठीक है सर। ओके। ऑलराइट, सो ये हमारे यूज़र लिस्टेड दिख जाएंगे, उनकी यूज़र टाइप दिख जाएगी। अगर वो ऑन प्रेमाइज सिंक्रोनाइज हो रहे हैं तो वो दिख जाएगा, इनेबल कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, ठीक है। उनकी आइडेंटिटीज़ दिख जाएंगी, ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएंगी। फिर आपका न्यू यूज़र वाला हमने देखा था, यूज़र कैसे बनाना है, तो हमने एक मेंबर बना के देखा। उसको गेस्ट कैसे बनाना है वो भी हमने देखा, क्योंकि जब बनाते हैं तब उसको या तो गेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको नॉर्मल मेंबर यूज़र की तरह बना सकते हैं। अच्छा, इन यूज़र्स को अगर डाउनलोड करना है तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे, डाउनलोड सारे यूज़र को एक्सेल या CSV फाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ बल्क ऑपरेशन दे रखा है, अगर हमें बहुत सारे यूज़र एक साथ बनाने हैं तो CSV से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बल्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल यूज़र बना रहे हैं तो बल्क इनवाइट कर सकते हैं और बल्क डिलीट भी कर सकते हैं। ये तीनों काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे कि एक्सटर्नल बनाता हूँ तो एक्सटर्नल कैसे बनेगा, उसकी ईमेल, क्योंकि वो एक्सटर्नल ईमेल हो गई, जैसे कोई जीमेल है ना, वो जैसे कि abc@gmail.com, ये बाहर का यूज़र है, उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी डिस्प्ले नेम मेंशन कर लेंगे, उसको इनविटेशन मैसेज भेजेंगे तो वो उसके ईमेल अकाउंट से हमारे एंटर आईडी पे लॉगिन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हमारे डोमेन से नहीं कर रहा है, हमारी कंपनी की वेबसाइट से नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे एक्सटर्नल ईमेल से कर रहा है, ठीक है। तो इनवाइट गेस्ट न्यू गेस्ट यूजर टू कोऑर्डिनेट विद योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द यूजर विल बी इनेबल्ड ईमेल एन इनविटेशन दे कैन एक्सेप्ट इन ऑर्डर टू बिगिन द कोलैबोरेटिंग, ठीक है। तो वो हमारे साथ काम कर पाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, बट दे विल रिमेन द एक्सटर्नल यूजर। उनका हम हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकाउंट नहीं बनाने वाले, तो उस केस में वो एक तरीके से एक्सटर्नल यूज़र ही काम करेंगे, और इनको कस्टम इनविटेशन मैसेज हम भेज सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और CC में जैसे हमारे बॉस को रखना है या जो भी है हम कॉपी कर सकते हैं। इनविटेशन URL ये हो जाएगा, ठीक है। रीडायरेक्ट URL ये बन जाएगा जो उनको यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इनविटेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज लाइक प्रोसेस, एंड देन हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसका थोड़ा डिटेल्स डालेंगे, उसको कोई असाइनमेंट देना है, ग्रुप में ऐड करना है, कोई रोल है, तो वो एज अ आउटसाइडर ही काम करेगा उसकी ईमेल से, लेकिन वो हमारे जो रिसोर्सेज या जो परमिशन हमने दिए हैं वो उस पर काम कर पाएगा, ठीक है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कोई थर्ड पार्टी डेवलपर हो गया, आउटसोर्स किया हुआ कोई बंदा है, उसको हम यहाँ से करके इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़र बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ परमिशन रिलेटेड आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, let me see, okay, admin, okay, I think still members are joining. I don't know if the connection is unstable or something, so I'll just lower the hand, okay.
ऑल राइट, सो ये हमारा एक्सटर्नल यूज़र का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इंटरनल एक्सटर्नल कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी यूज़र्स में गए हम लोग, अब क्या देखना है हमें, ये हमने एक्सटर्नल कैसे इनवाइट करना वो देख लिया, इंटरनल कैसे बनाना वो देख लिया। डाउनलोड और बल्क ऑपरेशन में आपको अगर बल्क क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट देगा, ये टेम्पलेट दे देगा। इस टेम्पलेट में आप डाउनलोड करके वही फॉर्मेट में आपको फाइल फॉर्मेट करके ये अपलोड कर सकते हैं यहाँ से CSV फाइल। ठीक है, बल्क अपलोड हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, बल्क इनवाइट करना है तो उनका एक टेम्पलेट की फॉर्मेट होगा, वो आपको दे देगा और आप उसको बल्क इनवाइट भी कर पाएंगे। ठीक है, यूजिंग द एडिट करके आप उसको कर सर सकते हैं। हाँ जी, सर ये CSV फाइल क्या है सर ये? CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल बोलते हैं, जो एक्सेल में ही बन सकती है। हम जब एक्सेल खोलते हैं, मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू एक्सेल, मैं यही डाउनलोड कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। जैसे कि हमें बल्क इनवाइट करना है तो ये एक डाउनलोड करता हूँ, ओपन फाइल। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, ऐसी फाइल होती है। ठीक है, अभी इसमें फाइल में क्या है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स मेक इट लिटिल बिग। तो टास्क बार ऑटो हाइड क्यों नहीं हो रहा है? टास्क बार सेटिंग्स, लॉक द टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड। ओके, यस, ऑटोमेटिक हाइड। अब नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला कॉलम इस तरीके से बन जाएगा, ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटीज। ठीक है, तो ये आपका ईमेल एड्रेस जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, ये ईमेल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे ये रीडायरेक्ट URL आपको डायरेक्टली दे देगा। यहाँ पे कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है उसको, यूज़र को अगर जैसे आपका CRM सॉफ्टवेयर है या portal.azure.com पे ले जाना है तो वो आप दे देंगे। ठीक है, उसको इनविटेशन भेजना है, यस या नो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। और उसको क्या मैसेज भेजना है, वेलकम टू जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो आप दे देंगे। तो इस तरीके से जैसे आपके पास में 100 यूज़र को एक साथ भेजना है तो 100 रोज बनानी है आपको। इस टेम्पलेट को आपको क्या करना है, फाइल सेव एज, यहाँ जाना है सेव एज में। और जैसे कि यहाँ ब्राउज कर लेते हैं कहीं पे भी। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ कि मुझे सेव करना है इसको CSV फॉर्मेट में, कोमा सेपरेटेड। तो CSV MS DOS ले लेंगे और ये हो जाएगी CSV फॉर्मेट। तो ये टेम्पलेट आपकी बन जाएगी। दिस इज व्हाट द CSV फॉर्मेट इज। क्लियर? ठीक है, इसको यस। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसको हम कॉमा सेपरेटेड फाइल बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या करेगा कि आपकी कॉमा सेपरेटेड इसकी फाइल बना देगा। इनफैक्ट आप अगर इसको अगर ओपन करते हैं तो वो CSV फॉर्मेट में ही होगी। तो जैसे कि मैं आपको राइट क्लिक करके नोटपैड के साथ ओपन करके दिखा देता हूँ इसको, ओपन विद नोटपैड। तो ये ऐसी फाइल है, देखो वही फाइल हमने एक्सेल में खोली थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये फाइल सेपरेट हो रही है यहाँ से। ये कोमा लगा हुआ है, फिर सेंड इनविटेशन, ये कोमा लगा हुआ है। इस तरीके से कोमा सेपरेटेड फाइल होती है। सिंपल, तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, जैसे कि इसने दिया, ये पहली ईमेल है हमारी। ठीक है, दूसरा URL हो गया, तीसरा ट्रू हो गया और चौथा मैसेज हो गया। इस तरीके से आपकी कॉमा सेपरेट। तो ये आपके हेडर में था यहाँ पे, और ये आपके, तो हर चीज़ कॉमा से सेपरेट है, इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड फाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से आपको वो फाइल पे बात करना है जो मेंबर के लिए आपको करना, बल्क ऑपरेशन, बल्क क्रिएट, तो इसकी भी ऐसी फाइल बन जाएगी। ये भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं, बल्क क्रिएट वाली। और ये इस तरीके से बन जाएगी। इसमें कितने कॉलम बन रहे हैं देख लेते हैं। तो इसमें आपके बन जाएंगे, लेट्स सी, ये डिस्प्ले नेम आ गया जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर आ गया यूज़र नेम, जो लॉगिन के लिए यूज़र नेम बनाना है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा डोमेन नेम आएगा, राइट। इसमें यहाँ पे एग्जांपल है। फिर उसका पासवर्ड क्या होगा इनिशियली, जो बाद में वो चेंज कर लेगा।
और उसका साइन इन ब्लॉक इन करना है, नो यस वो वाला हम ऑप्शन दे देंगे। अगर उसको बनाने के बाद में उसको इनेबल रखना है तो यस कर लेंगे, नहीं तो अगर उसको इनेबल नहीं करना, बना के रख लेना है तो नो कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज या फर्स्ट नेम आ जाएगा उसका, जो हम जो प्रॉपर्टीज हम फिल करते हैं ना बेसिकली, जो एंट्री आईडी में बनाते हैं या एंट्री आईडी के अंदर जो यूज़र बनाते हैं वही सारा कुछ पूछे रहा है, सारा कुछ वही है। तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शनल्स हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको फिर आप बल्क में बना लेंगे, जैसे आपके पास में 20-25 लोग हैं या 50 लोग हैं, इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लें उसको, CSV में सेव करें और उसके बाद में आप इसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन बल्क अपलोड और बल्क क्रिएट एंड बल्क इनवाइट यूजर्स। ठीक है, अभी इसको बंद करते हैं। तो ये आपका ये यहाँ से आप अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, ये प्रोसेस करके उनको बना देगा एक साथ। ठीक है, देन उसी तरीके से आप बल्क डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट में भी आपको फाइल देनी है, जैसे 10-20 यूज़र को एक साथ हटाना है, यू कैन डू दिस। यस ध्रुव, यू हैव क्वेश्चन? सर एक्चुअली पूछना था कि ये क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा अपलोड करने के बाद फाइल, राइट? हाँ, वो क्रिएट हो जाएगा, इनेबल है तो इनेबल हो जाएगा, नॉट इनेबल है तो डिसेबल पोजीशन में सेम रहेगा। एज फॉर डिलीट। हाँ, डिलीट में ओके सब उड़ जाएंगे, वो जो आप डिलीट करेंगे वो सब चले जाएंगे। और भी ओके। यहाँ पे आ जाएंगे, डिलीटेड यूज़र में आपको नज़र आएंगे। जब आप यूज़र्स में जाएंगे तो ये डिलीटेड यूज़र्स यहाँ नज़र आएंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वो कौन कौन से डिलीट हुए हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास कोई डिलीटेड नहीं है तो यहाँ नहीं है, तो ये शायद 1 महीना 30 डेज रहेंगे, उसके बाद में परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। तो आप जब डिलीट कर लेंगे तो यहाँ पे 30 दिन तक वो डिलीट रहने वाला है। जैसे एक करके देख लेते हैं हम लोग, ऑल यूज़र्स में गए, चलो इसी को उड़ा देते हैं, डिलीट। ओके, ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट, तो वो चला गया यहाँ से। अब डिलीटेड यूज़र में देखेंगे तो ये यहाँ पे 30 दिन तक दिखाई देगा, उसके बाद में यहाँ से हट जाएगा। तो 30 दिन हमारे पास चांस है कि हम इसको या तो डिलीट कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओके, इसको यूज़र थैंक मैनेज यू। कर सकते हैं, राइट। अब बल्क रीस्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये मैंने नोटिस नहीं किया, बट या यू कैन बल्क रीस्टोर एज वेल। अगर गलती से कुछ डिलीट हो गए 10-20 यूज़र तो उनको बल्क रीस्टोर भी, आई थिंक वही टेम्पलेट वाला ऑप्शन है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं, इजी। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा यूज़र मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। फिर यहाँ पे ये ऑडिट लॉग सारे यूज़र की दिखेगी एक साथ, अलग अलग जितने भी यूज़र है। डेफिनेटली यू कैन यूज़ द फिल्टर एज वेल। तो यहाँ पे और भी फिल्टर, जैसे 7 दिन का देखना है, 24 घंटे का देखना है, तो यहाँ पे यूज़र्स का आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जैसे यूज़र मैनेजमेंट, ये एक्टिविटी हो गई, कौन कौन सी एक्टिविटी, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, क्या हुआ है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है बेसिकली, किसी ने कुछ किया है गड़बड़ तो कितने यूज़र ऐड हुए हैं वो सब देख पाएंगे आप। जैसे अभी 24 घंटे में हमारे पास में ऐड यूज़र एक हुआ है कोर डायरेक्टरी के अंदर, ऐड यूज़र सक्सेसफुल था ये वाला। ठीक है, 24 आवर बैक, इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, 7 दिन की एक्टिविटी या कस्टम टाइम इंटरवल की कोई अगर पर्टिकुलर डे की एक्टिविटी निकालनी है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को टारगेट करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं किसी को ब्लॉक किया है, डिलीट किया है, कुछ भी अगर एक्टिविटी हुआ है। और कई बार क्या होता है, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टेक करता है और दूसरे पे ब्लेम आ जाता है, तो वो उस केस में ये सब बहुत अच्छा है, यहाँ से वो देख पाएंगे कि किसने कौन सा काम किया है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ पूरी डिटेल आपको दिखेगी इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे, एड यूज़र हुआ है, यूज़र मैनेजमेंट सक्सेस हुआ है, टाइप ऑफ द यूज़र, किसने किया है वो, ये सब दिख पा रहा है। टारगेट्स, मॉडिफाइड प्रॉपर्टी, क्या क्या मॉडिफाई हुआ है वो सब दिखेगा आपको, पूरा डिटेल इसमें ये दिख जाएगा यहाँ से। और इसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑडिट लॉग, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़फुल है, क्योंकि कोई भी एडमिन एक्टिविटी हुआ है तो उसका प्रूफ तो डेफिनेटली चाहिए चाहिए। फिर ये साइन इन लॉग है, जो कि सभी यूज़र के लिए, एडमिन के लिए भी अप्लाई है, कौन कब साइन इन कर रहा है, जैसे कल हमने एडमिन 3 से किया था वो सारा यहाँ पे है, इस तरीके से दिखाएगा। अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई
अगर कोई यूज़र बोलता है कि मैंने साइन इन करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ या व्हाटएवर, या पर्टिकुलर सस्पिशियस लोकेशन से साइन इन हुआ है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि क्या एक्चुअली वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल आपको दिखा देगा। आप क्लिक करेंगे तो उसकी लोकेशन, उसकी डिवाइस इंफॉर्मेशन, उसका ऑथेंटिकेशन डिटेल, अगर उसमें कोई एक्सेस पॉलिसी है, ठीक है, वो सब आप यहाँ से देख पाएंगे। तो काफ़ी कुछ डिटेल मिल जाती है यूज़र के रिगार्डिंग। आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इतना डिफ़िकल्ट इंटरफेस नहीं है। यहाँ पे ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं, आप फिल्टर्स जैसे 7 दिन का चाहिए आपको, 24 घंटे का चाहिए, जो भी इंटरवल का, आप कस्टम डेट्स निकाल के भी उसका देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाता जा रहेगा। और भी आपको फिल्टर, आप फर्दर फिल्टर कर सकते हैं, यूज़र नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, आईपी एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के, ये इस तरीके से आपके बहुत सारे फिल्टर हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिम डाउन कर सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर यूज़र को। ठीक है, ये साइन इन वाला हो गया। ये डिलीटेड यूज़र का आपको दिखाई दिया मैंने। ठीक है, पासवर्ड रीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट इसमें आता है और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जिसमें कि यूज़र खुद अपना पासवर्ड को चेंज कर पाता है। ठीक है, दिस फीचर इंक्लूड्स द सेट ऑफ कैपेबिलिटी दैट अलाउ योर यूजर्स टू मैनेज एनी पासवर्ड फ्रॉम एनी डिवाइस एट एनी टाइम फ्रॉम एनी लोकेशन वाइल रिमेनिंग द कंप्लायंट टू द सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे अगर आप सेल्फ सर्विस पासवर्ड के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ से आप SSPR मतलब सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और उसके बाद में उसको ये नोटिफाई कर पाएंगे कि ये यूज़र इसके मेंबर होंगे। तो आप जो यूज़र यहाँ मेंशन करेंगे वो अपना पासवर्ड खुद ही चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव बिकॉज इतना डिटेल में आपको कोई ना तो एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, ये ज़्यादातर आपका ऑफिस 365 एडमिन का काम रहता है। ठीक है, बट SSPR का जस्ट आप अवेयर रह सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। फिर यूज़र सेटिंग्स में कुछ देख लेते हैं। तो यूज़र के कुछ सेटिंग्स होती है, रोल परमिशन आप देख लेते हैं। जैसे यूज़र कैन रजिस्टर एप्लीकेशन, अगर यस किया है तो ये वाला जो भी यूज़र होगा या जितने भी यूज़र होंगे आपके, वो एप्लीकेशन खुद ही रजिस्टर कर पाएंगे। जितने भी आपके एंड्रॉयड आईडी में यूज़र है वो कर पाएंगे। तो ये सभी पे एप्लीकेबल होगी। बेसिकली दिस इज़ फॉर ऑल यूज़र्स। ठीक है, एंड देन यूज़र कैन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यस या नो, तो सबको या तो अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर गेस्ट यूज़र के लिए 3 सेटिंग है हमारे पास। गेस्ट यूज़र हैव द सेम एक्सेस लाइक मेंबर, तो ये मोस्ट इंक्लूसिव मेथड हो गया। ये कोई देता नहीं है बेसिकली, ये ऐसे ही हो गया जैसे कंपनी स्टाफ की तरह काम कर पाएगा, वो सब कुछ वही कर पाएगा जो कंपनी स्टाफ कर पाते हैं। और इसमें गेस्ट यूज़र हैव लिमिटेड एक्सेस, अगर उसको हम ये वाला देते हैं तो उसको लाइक कुछ एक मेंबरशिप से कम उसको एक्सेस मिलेगा, लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, प्रॉपर्टीज एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड ये सबसे रेस्ट्रिक्टिव वाला है जिसमें गेस्ट यूज़र इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टीज एंड मेंबरशिप ऑफ देयर ओन डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, वो किसी और की प्रॉपर्टी और वो नहीं देख पाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन, अगर हम ये यस कर देते हैं तो वो एंट्रा एडमिन पे जाके दूसरे यूज़र की प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। कई बार क्या होता है कि अगर ये नो रह जाता है तो उस केस में वो सबको देख पाते हैं, सारी डिटेल्स उनकी देख पाते हैं। ये एक थोड़ा सा रिस्की फीचर है, ये यस होना चाहिए बट आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट इज कीपिंग नो। फिर उनके लिंक्डइन अकाउंट कनेक्शन वो दिखाना है कि नहीं, तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है यूज़र में। ओके, एंड बल्क ऑपरेशन रिलेटेड अगर कुछ हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा रिजल्ट्स, है ना। ये लास्ट में ट्रबल शूट और ये रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। बस यही सब कुछ होता है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं ग्रुप्स पे। तो ग्रुप्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रुप बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट करता है कि ग्रुप इज़ लाइक ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली। तो हमारे पास में जितने भी लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बना सकते हैं और हर मेंबर को आप मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। तो ग्रुप बनाना बहुत आसान है, यू कैन क्रिएट न्यू ग्रुप फ्रॉम हियर एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रुप। और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप जो होता है वो
कोलैबोरेशन के लिए काम आता है। मीन्स आपकी एक ईमेल बन जाएगी और आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के मेंबर हैं, तो उस ग्रुप में आपको वो इज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ठीक है। तो आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल ग्रुप पे चली जाएगी, ग्रुप की ईमेल सबको चली जाएगी, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये होता है। और एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में वो ईमेल कोलैबोरेशन नहीं होता है, इसके अंदर इट्स लाइक यू कैन असाइन द रोल, परमिशन, वो सब कुछ कर पाते हैं। तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है इस केस में, ठीक है। टाइप ऑफ द ग्रुप, फिर वो ये पूछेगा ग्रुप का नाम क्या रखना है ठीक है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे सितंबर या ऐसे बनाते हैं एज्योर डेवऑप्स ग्रुप, ठीक है। ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस इज एज्योर डेवऑप्स सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। मेंबरशिप टाइप हमें डिसेबल दिख रहा है। उसका की रीज़न ये है कि हमारे पास P1 P2 लाइसेंस नहीं है, हम फ्री वाला लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं। बाकी हमें मेंबरशिप टाइप में दो तरीके की मेंबरशिप दिखेगी, एक तो असाइंड वाली दिखेगी जो हमें यहाँ पे डिसेबल करके लगी हुई है, और दूसरी दिखेगी डायनामिक। डायनामिक में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो डायनामिकली बना सकते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनते हैं, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। फिर इसका जो ये ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप का एडमिन कौन होगा वो हम दे सकते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट को, और कौन कौन मेंबर्स होंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं तो हम इसका एडमिन किसी को भी बना सकते हैं, जैसे ये नेटवर्क एडमिन 2 ले लेते हैं, इसको एडमिन बना लिया। अब ये मैनेज करेगा इसको, किसको मेंबर बनाना है किसको नहीं बनाना है, ठीक है। और किसी एक यूज़र को पिक करके यहाँ से यूज़र पिक कर सकते हैं, और जैसे कि ABC कोई है ये, तो इसको ऐड कर लेते हैं एक मेंबर, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी वो क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने जो ग्रुप बनाया था हमारा, उसका नाम ये रहा, पहला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि हम नेम से ऑर्डर कर सकते हैं ए से, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एज्योर डेवऑप्स ग्रुप हमने बनाया, इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, और डेफिनेटली इसकी परमिशंस जो है वो असाइंड होने वाली है, क्योंकि हमें डायनामिक वाली नहीं मिलेगी। यहाँ पे डायनामिक वाली मिलती है अगर हम लोग को पास P1 या P2 लाइसेंस होता है, जिसके की पर यूज़र पे लाइसेंसिंग कॉस्ट आई थिंक 700 या ऐसा कुछ आती है, इसलिए कॉस्टली है वो, ठीक है। बट सम ऑर्गेनाइजेशंस कैन अफोर्ड इट, सो दे कैन हैव दिस। फिर आप इस ग्रुप को ओपन करेंगे तो इसका सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे, कितने मेंबर बने हैं इसमें, कितनी डिवाइसेस इसमें इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। वो सब आप देख पाएंगे, कौन है इस ग्रुप का ओनर, है ना, तो वो आप देख पाएंगे, कितने मेंबर हैं यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस ग्रुप को असाइन कर रखी है तो वो इस तरीके से दिख पाएगी, ठीक है। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, लेट मी, तो मैं एक स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा, देखो इंट्रा आईडी में हमारे पास में हमने 3-4 चीज़ हमने देख ली। एक तो यूज़र होता है, ठीक है, यूज़र होता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रुप्स, तीसरा होता है रोल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें बेसिकली कोर हैं। तो अभी क्या होता है ना कि अगर हमें किसी यूज़र को रोल देना है, जैसे कि हमारा फाइनेंस मैनेजर आया है, FM कर देता हूँ इसको, फाइनेंस मैनेजर है, उसको हमें कुछ रोल देने होंगे। उसको हमें क्या देना होगा, हमें उसको एक तो ERP सॉल्यूशन अगर हमारे पास है उसका एक्सेस देना है, ठीक है। अगर फाइनेंस रिपोर्टिंग का कुछ सिस्टम है उसका हमें एक्सेस देना है। उसका हमें कोई अगर हमने फाइनेंस के लिए अगर कोई स्टोरेज अकाउंट बना रखा है, ठीक है, जिसमें उसकी फाइल्स वगैरह सेव करते हैं, उसका एक्सेस देना है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड हमारी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसका एक्सेस देना है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका एक्सेस देना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, और ये सभी फाइनेंस वालों को हमें देनी है। और फाइनेंस के अंदर जैसे 20 बंदे काम करते हैं, तो कोई आएगा कोई जाएगा, कोई रिज़ाइन करेगा, कोई न्यू बंदा आएगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हमारा यूज़र मैनेजमेंट में क्या ऑप्शन होता है कि हम इसका ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, और उसके हम रोल्स
को देख सकते हैं और उन रोल्स को हम इन यूजर्स पे अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन में कैसे काम करेगा वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट मी मिनिमाइज अदर थिंग्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोल्स देखेंगे। तो क्या होता है, रोल क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ परमिशन होता है। जैसे कि आपकी किसी पे रीड परमिशन है, ठीक है, किसी पे आपका राइट परमिशन है, किसी पे आपका एक्सेस परमिशन है, ये अलग अलग परमिशंस है, ठीक है। ये परमिशन के बंच को हम क्या बोलते हैं, रोल बोलते हैं। दिस इज लाइक वन रोल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं। तो इस तरीके से हमारे रोल बने हुए होते हैं। उन रोल्स को हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें रोल 1 है, मैं ऐसे ही डमी नेम ले रहा हूँ, रोल 2 है, ठीक है, रोल 3 है, इस तरीके से रोल है। उनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। रोल 1, रोल 2, रोल 3, जो भी अगर इस टाइप के रोल हमने बना रखे हैं, एंड रोल 1 इज हैविंग लेट्स से परमिशन 1, परमिशन 2, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लें। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ इरेजर से। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका P3 P4 कुछ परमिशंस बनी हुई हैं, P4 कर लेता हूँ, इस तरीके से इसके P5 P6 बनी हुई है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ परमिशंस हो गई, ये रोल्स हो गए, 3 रोल हो गए। इन रोल्स को अभी मैं इंडिविजुअल यूजर पे लगाऊंगा तो मुझे 20 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20 बंदे हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप को नाम फाइनेंस का दे दूंगा। ये फाइनेंस से रिलेटेड ग्रुप है, इसमें ये एप्लीकेशन 1 से रिलेटेड, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, जो भी रोल्स मैंने बनाए वो सब इस ग्रुप पे अप्लाई किया एक ही बार में, इन तीनों रोल को। और ये जो हमारा फाइनेंस के जो 20 बंदे हैं हमारे पास में, जो 20 बंदे हैं, उनको इस ग्रुप का मेंबर बना दूंगा। दे आर गोइंग टू बी मेंबर्स, ठीक है। बहुत आसान हो गया। अब मुझे किसी भी बंदे के जाके प्रोफाइल में रोल्स असाइन नहीं करना है, क्योंकि these people are member of this group and this group is having all these role access, ठीक है। तो ये मेरा परमिशन मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है उस केस में, कि मुझे एक फाइनेंस में अगर कोई HR से मुझे ईमेल आया कि एक बंदा फाइनेंस में ऐड करना है आपको, और इसको जो फाइनेंस वाले को जो रोल्स आप देते हैं वो देना है, तो आपको क्या करना है, वो यूज़र को क्रिएट करना है, उसको उस ग्रुप का मेंबर बनाना है, एंड यू आर डन, राइट। बिकॉज वो फाइनेंस के सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर पाएगा, वो फाइनेंस की सारी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएगा। इस ग्रुप में मैंने सारे परमिशंस क्लब टुगेदर करके रख लिए, तो एवरीथिंग ही विल बी एबल टू डू फ्रॉम दिस ग्रुप। मेकिंग सेंस? तो इस तरीके से रोल, ग्रुप एंड यूजर काम करते हैं। ऑलराइट, तो ये एक मीन्स रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। योर पोर्टल बैक हियर। तो इस तरीके से हमारा ग्रुपिंग बेसिकली काम करता है। ओके, अभी आप देखेंगे कि हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में हम रोल दे देंगे। तो जो रोल मुझे इस ग्रुप में दूंगा मैं, वो सारे रोल्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। रोल एंड असाइनमेंट जैसे कि यहाँ पे होता है, ये एज़्योर रिलेटेड रोल्स हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसको हम बना के यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कुछ बंच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हम यहाँ दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मेंबर्स इसके बना सकते हैं, जो भी मेंबर होंगे यहाँ पे हम सारे मेंबर को ऐड कर लेंगे, और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ग्रुप मेंबरशिप, यहाँ पे अगर इसको मेंबर बनाना है किसी और ग्रुप का, तो ये नेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे इस ग्रुप का मेंबर बना लिया इसको, तो ये सारे मेंबर इस ग्रुप के बन जाएंगे। तो ग्रुप को भी हम मेंबर बना सकते हैं ग्रुप का, ठीक है। तो ग्रुप 1, अब मैं ग्रुप 1 पे जाता हूँ, ठीक है। उसके मेंबर्स में देखता हूँ तो मुझे एज़्योर डेवऑप्स इसका मेंबर दिखता है, ठीक है। तो ये इसका मेंबर बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ग्रुप का मेंबर हो सकता है, और कोई इंडिविजुअल भी ग्रुप का मेंबर हो सकता है। इस तरीके से आपके नेस्टेड आपका ये पूरा काम हो सकता है, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ में। आपको
ये कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा। क्रॉस ये उसके लिए है जो आप B2B वाला केस में आप सेटअप करते हैं, तो उसका कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ये कर पाएंगे। यहाँ पे हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली अगर कोलैबोरेशन होगा तो वो इंट्रा एडमिन की पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये उस तरीके से होगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे इसमें बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमें कैसे बनाना है वो हमने देख लिया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हम सिंपली इस तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, उसको असाइन करेंगे रोल्स, और वो रोल्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हम ग्रुप को असाइन कर लेंगे, और इस तरीके से हम नेस्टेड वे में हम कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपका आ गया एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन आपकी जो इंटरनल एप्लीकेशन है, जैसे कोई ERP हो गया या कोई पावर BI हो गया, इस तरीके से वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जैसे अगर कोई एंट्रा गैलरी में से भी करना है या क्रिएट योर ओन एप्लीकेशन करना है, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से एंट्रा एप्लीकेशंस को भी ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गए। और ऐप रजिस्ट्रेशन, मगर आप जैसे कोई आपका इंटरनल या न्यू एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को भी आप एंट्रा ID में रजिस्टर कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन दो तरीके की हो गई, एक तो एंटरप्राइज वाली हो गई, जो कि आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे आप एक्सेस करते हैं वो कर पाएंगे। तो एक तो हो गई आपकी थर्ड पार्टी, उसको आप यहाँ पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोल सकते हैं, उसको आप इसमें एंट्रा ID में इंक्लूड कर पाएंगे। और एक आपके हो गए कस्टम जो आपका डेवलपर बनाने वाला है वो आपको इसमें रजिस्टर कर सकता है। उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि वो एंट्रा ID का यूज़ करके ऑथेंटिकेट कर पाएगा। तो बेसिकली अगर कोई यूज़र इस एप्लीकेशन कस्टम डेवलप एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो ही विल बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग द एंट्रा ID एंड ही विल बी ऑथेंटिकेटेड ऑन द एप्लीकेशन टू यूज़ इट। तो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट एंट्रा ID हैंडल कर लेगा इसमें। वो कोडर जानते हैं कैसे उनको क्रिएट करना है या कोड राइट करना है, और इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए होंगे तो उससे भी उनको हेल्प मिल जाएगी। सो यू कैन रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम हियर। एंड इसमें आप मल्टी टेनेंट भी बना सकते हैं, सिंगल टेनेंट भी बना सकते हैं, और पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट ID वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, अगर हम जाते हैं सिंगल टेनेंट के हिसाब से, मतलब कि जो हमारा एंट्रा ID का अकाउंट है या जो एक टेनेंट बनाया है हमने, उसी के टेनेंट के लोग ही उस पर ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मल्टी टेनेंट मीन्स कोई और टेनेंट, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा abc.com है, किसी का XYZ है, तो उससे भी वो कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो पर्सनल अकाउंट प्लस मल्टी टेनेंट दोनों हो जाएगा। और चौथा वाला जो है ओनली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, जैसे आउटलुक या लाइव अकाउंट है, उससे वो कर पाएंगे। इस तरीके से आप रजिस्टर कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, और वो एप्लीकेशन का नाम देंगे और वो रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद में ये जब रजिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, जैसे कि मैं कोई भी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, इस तरीके से एक एप्लीकेशन ID, ऑब्जेक्ट ID, ये सब कुछ बन के आपको दिख जाएगा। बेसिकली दीज आर फॉर इंटरनल यूज़, एंड इसके साथ में आप काम कर पाते हैं। ठीक है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा, कैसे वो कोड सैंपल्स भी मिल जाएंगे इसके। तो ये आपके डेवलपर को आप दे सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सिनेरियो और ये सारा कुछ, लाइब्रेरीज, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। आपको जो भी डेवलपर मांगेगा, आपको मांगेगा एप्लीकेशन ID चाहिए, ऑब्जेक्ट ID चाहिए, या डायरेक्टरी टेनेंट ID चाहिए, तो यहाँ से आप उसको दे देंगे एंड दैट्स इट, ही विल बी एबल टू। और यहाँ से एंड पॉइंट्स भी आपके दिख जाएंगे, ये एंड पॉइंट है ऑथेंटिकेशन के लिए या ऑथराइजेशन के लिए। तो इस तरीके से आपका ये काम चलता है। Okay, so these are related to ERP or basically applications here. This is about the devices which we are using. ठीक है, और devices आप जाके यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, तो मेरे केस में मैं 2 डिवाइस यूज़ करता हूँ, तो वो दोनों यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगी रजिस्टर्ड की तरह। और डिवाइसेस में भी 2 तरीके की डिवाइस होती है, एक तो होती है आपकी जॉइंट वाली डिवाइस और एक होती है रजिस्टर्ड वाली डिवाइस। तो रजिस्टर्ड वाली डिवाइस बेसिकली आप आपका यूज़र यूज़ करके ब्रिंग योर ऑन डिवाइस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कहीं तो दिखाया होगा नंबर ऑफ डिवाइसेस प्रीव्यू। ये बेसिकली एक ये सॉफ्टवेयर आता है एंट्यून, ये डिवाइस मैनेजमेंट के लिए काम आता है। एंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग से एक जॉब होती है, वो लोग
डिवाइस को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ऑटो इंस्टॉल करना, प्री कॉन्फ़िगर करना, वो सब देखते हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। यस शुभम, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर एक्चुअली ऐप रजिस्ट्रेशन का मतलब पर्पस क्या है? ऐप रजिस्ट्रेशन का पर्पस है कि आप एक कस्टम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका ऑथेंटिकेशन आप एंटर आईडी के थ्रू करना चाहते हैं। ओके ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड उसमें नहीं बने और वो एंटर आईडी वो वाला काम हैंडल कर ले, तो आप ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा एंटर आईडी पे। फिर वो कोडर जो है, वो जो कोड एक्सप्लेन किया है, जो लाइब्रेरीज एक्सप्लेन की है, उस हिसाब से वो कोडिंग करेगा और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंटर आईडी से होगा। देखो, कंपनी में दो तरीके की एप्लीकेशन होती है। आजकल जो पुरानी वाली तरीका के एप्लीकेशन है, इसका फायदा क्या होता है मैं बता देता हूँ सिंपली। पहला फायदा तो ये है कि अगर एंटर आईडी में आपने रजिस्टर किया है तो आपको एक ही यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए याद करने के लिए। जैसे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, एबीसी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देंगे, तो उसी से आपका ईमेल खुलेगा, ठीक है, उसी से आपका शेयर पॉइंट खुलने वाला है, आपने देखा हो, उसी से आपका ईआरपी खुलने वाला है, उसी से आपका एचआर सिस्टम खुलने वाला है। तो आपको बहुत सारे यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं करना है। जैसे ईमेल का पासवर्ड अलग है, शेयर पॉइंट का अलग है, ईआरपी, तो आप बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक यूजर के लिए, ठीक है। उसी से आपका जैसे एज्योर आप यूज़ करते हैं, एज्योर खुलेगा, ठीक है। उसी से आपका वर्ड एक्सेल फाइल जो डाउनलोड होनी है, तो वर्ड एक्सेल या ऑफिस प्रोडक्ट्स बोल दीजिए, ऑफिस प्रोडक्ट्स खुलेंगे। और उसी से आपका वन ड्राइव कनेक्ट है, वन ड्राइव। तो इसमें ये हो गया कि एबीसी कंपनी आपने ज्वाइन किया, उन्होंने आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजा, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया तो आपका ज्वाइन करते आपको यूज़र नेम दिया, आपने पासवर्ड रीसेट कर लिया उसको, ठीक है। अभी आपको सारा एक्सेस मिल गया, क्योंकि वो क्या हुआ कि उन्होंने ग्रुप बना रखे थे, उसमें आपको ऐड कर लिया, तो आप ये सारा एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपका, जैसे आपकी कंपनी में एक डेवलपर है, ठीक है, वो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है जो कि आप लोग इंटरनल स्टाफ मेंबर को यूज़ आने वाला है, जैसे कोई रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर मान लेते हैं या ऐसा कुछ, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बनाया उसने। अभी क्या होगा कि या तो एक तरीका ये है कि वो डेवलपर उसी में आपको रजिस्टर करने के लिए बोले कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, मैं आपको अप्रूव करूँगा, ऐसा। तो फिर इसका यूज़र नेम और पासवर्ड अलग से याद करना है आपको, ठीक है, पासवर्ड अलग। अगर ये पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सेम पासवर्ड यहाँ यूज़ किया आपने, तो आपका दोनों अकाउंट हैक हो जाएगा, राइट। इजीली समवन कैन गो इनटू इट। तो ये ना करके वो क्या करेगा, अपना जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसको एंटर आईडी पे रजिस्टर कर लेगा। अब उसकी एंटर आईडी पे रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या है, जैसे उसका URL है erp.abc.com, इस पे जाने पे आपका ERP खुलता है। तो ये क्या होगा, वो जब आप इस पे हिट करेंगे तो वो सबसे पहले आपको एंटर आईडी पे भेजने वाला है कि जाओ वहाँ पे ऑथेंटिकेट करके वापस आओ। यस होगा तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, नो होगा तो वो आपको बोलेगा रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड। तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही यूजर नेम पासवर्ड से सारा काम हो रहा है। सो दिस इज व्हाट द ऐप रजिस्ट्रेशन पार्ट इज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का ये फायदा है। ओके, आई होप इट्स क्लियर एंड लेट्स गो बैक। हमारा और क्या रह गया यहाँ पे देख लेते हैं। फिर डिवाइसेस आपकी ये होती है कि हेलो, what is the difference in between Intune and Intra ID? Enter ID is for user management, Intune is for device management, ठीक है। उसमें जैसे कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है तो Enter ID से नहीं कर पाते आप, उस केस में आपको Intune ही यूज़ करना होगा। जैसे कि आपको अपडेट्स रिलीज करने हैं, आपको डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर पुश करना है, आपको अगर एंटीवायरस की रिपोर्ट देखनी है, तो वो सब Intune में काम आएगा। ये इसमें Enter ID में आपका Enter ID is just for user management and devices are listed here because sometime we would like to control the user activity। तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइसेस मैनेज करेंगे हम। इसमें अगर हम डिवाइस देख रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सी डिवाइस को यूज़ कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम
देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये डिवाइसेस हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका ओनर कौन है, जैसे एक ही ओनर के अंडर में कितनी डिवाइस है, कोई बंदा ऐसा तो नहीं पासवर्ड शेयर कर रखा है और 5-7 जगह से अलग अलग जगह से लॉगिन कर रहा है, मतलब कि उसने एक्सपोज कर रखा है, ऐसा कुछ है, उसकी एक्टिविटी हम देख पाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में ये ज़्यादा है कि एक ही बंदा क्यों यूज़ कर रहा है इस तरीके से। तो बाकी अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंट्यून है। ठीक है, इस तरीके से आपका तो ये है यू नो ऑल टुगेदर दिस इज ऑल अबाउट योर एंट्रा आईडी रिलेटेड टू एज्योर बेसिकली। ठीक है, एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है कि आप यूज़र मैनेज कर लें, आप लोग इसमें ग्रुप बना लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन उसको कर लें। तो ये मैं entra.microsoft से गया हूँ, तो थोड़ा सा इंटरफेस में डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट वही है, ऑल यूज़र्स है, इसमें भी ग्रुप, ये ओवरव्यू प्रीव्यू फीचर इसमें निकला है। प्रीव्यू मतलब कि नया फीचर है बेसिकली, ये ओवरव्यू टैब पहले नहीं था, पहले ऑल यूज़र ही होता था। प्रीव्यू कहीं पे भी लिखा आएगा, इसका मतलब वो समथिंग न्यू दे आर क्रिएटिंग। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ग्रुप्स कितने हैं, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप कितने बने हुए हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कितने बने हुए हैं, ऑन प्रीमाइस ग्रुप कितने बने हुए हैं, इस तरीके से यहाँ से आपको पूरा कुछ डिटेल दे देगा। और इसके ट्यूटोरियल भी ये कुछ दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल भी अच्छे से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और ऑल ग्रुप्स में जब आप जाएंगे तो ये जितने भी ग्रुप हमने अभी तक बनाए हैं वो सब दिख जाएंगे। डिलीटेड ग्रुप में जाएंगे तो सारे डिलीटेड ग्रुप दिख जाएंगे। ठीक है, कुछ सेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेल्फ सर्विस ग्रुप मैनेजमेंट चाहिए आपको तो वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ये हो सकता है प्रीमियम फीचर है इसलिए डिसेबल्ड है यहाँ पे। ठीक है, आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यूज़र एबिलिटी टू एक्सेस ग्रुप फीचर इन माई ग्रुप, तो आप यस नो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ इसमें छोटे छोटे फीचर बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एंट्रा आईडी एडमिन की तरफ टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ टारगेट कर रहे हैं। बट हमारे जस्ट नो हाउ के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, फिर हाँ, ये हो गया आपका यूज़र का, ये हो गया ग्रुप का, ये हो गया आपका डिवाइस का भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया, जैसे कि डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस देख पाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो ये डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यूज हो गया। फिर एप्लीकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही लिया है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कौन कौन सी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, साथ में ऐप रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस होता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन यू कैन सी यू नो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, लाइक या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं या पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं तो उनके एक्सेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ऐप रजिस्ट्रेशन करना है, जो हम कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ से हम कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐप है जो रजिस्टर्ड है बेसिकली, लाइक यू नो ऑल दिस। ठीक है, फिर ये हो गया अपना, और फिर ये एडवांस फीचर है जो हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कि ये इस टाइप के फीचर है जो एंट्रा एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो देख पाएंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मेथड कौन कौन से हैं, है ना। तो हमारा जैसे एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए या ओटीपी बेस्ड चाहिए या यू नो टेम्परेरी एक्सेस बेस्ड चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिटेल्स है। तो ये एंट्रा आईडी पर्सपेक्टिव बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, बट नो वन विल आस्क यू इन द इंटरव्यू रिलेटेड टू दिस, बिकॉज दिस इज लाइक मोर टुवर्ड्स एंट्रा एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस फीचर है जो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, एज्योर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर ग्रुप्स रोल्स एंड दैट्स इट, आई थिंक ऐप रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी कैन कवर सो फार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमें पिक करना होगा। तो हम एंट्रा आईडी तो हमारा लगभग कवर है। एंट्रा आईडी में अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि डाउट है या ऐसा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। तीनों यूआरएल भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सर्विसेज पे फोकस करना है, तो हम एक एक सर्विस हैंड्स ऑन करके देखेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड एक एक सर्विस के बारे में हम देखेंगे। मीनवाइल हम मे बी वी कैन टॉक अबाउट डैशबोर्ड हियर, जैसे कि ये डैशबोर्ड बन जाएगा आपका। तो मैंने आपको कल थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताया भी था। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आप चाहें तो कुछ की सर्विसेज, कुछ की रिपोर्ट्स आप ऐड कर पाएंगे और इसको आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी जनरली आपका जो पेज होगा वो होम पेज होगा। जब आप होम पेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे होम पेज दिखाई दे देगा। लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग रिलेटेड टू एंट्रा आईडी।
जस्ट गो थ्रू लाइसेंसेस हो गया। लाइसेंसिंग भी आपकी ऑफिस 365 से मेंटेन होती है, तो अभी इंट्रा आईडी पे इतना लोड नहीं है, पहले ये लाइसेंसिंग का मैनेजमेंट आपके इसमें होता था, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, यूजर ग्रुप डिवाइसेस, ये कवर हो गया, ये हो गया, ठीक है। Yes, so perfect. I think we have covered everything in the intra ID point of view. So this is done. And let me see if anything. Yeah, Aniket, you have any question? यस सर सर इंट्रा आईडी में मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं? देखो, इंट्रा आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र या जैसे ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे, डायनामिक और जो ग्रुप हम बनाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बनता है एक, दूसरा जो है वो ऑफिस 365 ग्रुप बनता है, उसका पूछ सकते हैं। ग्रुप और रोल्स के बारे में पूछ सकते हैं। यूज़र टाइप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र टाइप होते हैं अपना, जैसे हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसमें हमें पूछ लेंगे कि यूज़र कितने तरीके के होते हैं वो बताओ, ठीक है, मेंबरशिप या ऐसा। लेकिन एज्योर में मैंने इतना नोटिस नहीं किया, जो भी इंटरव्यूज़ बनते हैं वो मोर टुवर्ड्स द सर्विसेज होते हैं, बट फिर भी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आप यूज़र बनाते हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यू यूज़र कितने तरीके के होते हैं, क्या डिफरेंस होता है एक इंटरनल यूज़र में और एक एक्सटर्नल यूज़र में, ठीक है। फिर बल्क ऑपरेशन में आपको पूछ सकते हैं बल्क क्रिएट और बल्क इनवाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। अगर किसी को नहीं, तो ये एक्सटर्नल यूज़र के लिए, इंटरनल यूज़र के लिए, ठीक है, इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। फिर आपको ग्रुप में कुछ पूछ सकते हैं कि ग्रुप में डायनामिक और असाइंड ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हमने देखा था कि हमारे पास में असाइंड ग्रुप हम नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सॉरी डायनामिक ग्रुप हम नहीं बना पा रहे थे, मेंबरशिप टाइप में क्या डिफरेंस है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, ये है। दूसरा आपको पूछ सकते हैं ग्रुप टाइप में सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली ग्रुप हम किस टाइम पे यूज करते हैं, मतलब ग्रुप यूज करना? बेसिकली ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूजर्स को ग्रुप टुगेदर करने के लिए करते हैं हम। ओके, मतलब जैसे दो चार यूजर हमने क्रिएट किए हैं, हाँ, तो उनको कंबाइन करना है। हाँ, जैसे मैं आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो बता देता हूँ कि जैसे आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे कि आपकी कंपनी के अंदर जनरली क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे आपका टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें डायरेक्टर लोग और वो सब होते हैं, ठीक है। फिर उनके अगर छोटी कंपनी है तो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एचआर हो गया, एचआर एक फंक्शन हो गया, सेल्स हो गया अगर कोई बेचने वाली कंपनी है ऐसा कुछ, फाइनेंस हो गई होगा, सारी कंपनीज में होता है, ठीक है। और जैसे कि आईटी हो गया, इंटरनल या जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। और सपोर्ट हो गया, जैसे हम कुछ ये हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट है। अभी हम क्या करेंगे कि एचआर के एक ग्रुप बनाएंगे, सेल्स का एक ग्रुप बनाएंगे, फाइनेंस का एक ग्रुप बनाएंगे और आईटी का एक ग्रुप बनाएंगे। तो ये हम जो एंटर आईडी हमारा है ना, हमारी कंपनी के हिसाब से हम अलाइन कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट है, उनका एक ग्रुप बना देंगे। अब टॉप मैनेजमेंट के पास में क्या हो सकता है कि हमें कुछ परमिशंस देनी हो, जैसे कि इनको कुछ रोल्स देने हो, तो हमें जैसे टॉप मैनेजर, 2-3 मैनेजर हैं हमारे पास, ठीक है। ये तीनों मतलब बराबर लेवल के बंदे हैं, इनको एक स्पेसिफिक डैशबोर्ड की एक्सेस चाहिए या कोई ऐप है उसका एक्सेस चाहिए, जिसमें कि हमारी कंपनी का सारा रिपोर्टिंग उसमें जाता हो कंसोलिडेटेड, तो उनको वो रिपोर्टिंग का एक्सेस देना है। तो हमें क्या करना है, इस टॉप मैनेजमेंट का ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है, और इसको हमें ये रोल असाइन करना है, ये वाला, कि ये ऐप को एक्सेस कर पाए, दैट्स इट। तो ये ग्रुपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या आप हाँ, यस अनिकेत। नो सर, और सर मतलब ग्रुप हमें हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, मतलब एक आपने जैसे बोला कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसको अगर कोई रोल असाइन करना है तो उस टाइम पे हम एक ग्रुप क्रिएट करके फिर रोल असाइन करते हैं, राइट? मतलब एग्जैक्ट सबसे पहला स्टेप होता है कि यूजर क्रिएट करना है, उसके राइट बाद में उसका ग्रुप क्रिएट करना है, राइट? राइट और उसके लास्ट स्टेप होता है कि उसको रोल असाइन करना है, एग्जैक्टली। राइट? और कई बार ओके। ऐसा भी होता है, जैसे कि ये ऐसा कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, तो जैसे कि आपकी कंपनी चल रही है पहले से, ठीक है, तो आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम तो वो कंपनी बनी नहीं है, वो कंपनी तो पहले से बनी हुई है, तो आपके ग्रुप तो हो सकता है पहले से ही बने हों,
राइट। तो आपका जब नया यूज़र आएगा तो आप एज्योर एडमिन की तरह अगर आप जाते हैं तो नया यूज़र आएगा, अगर उसने एचआर ज्वाइन किया तो उसको एचआर का मेंबर बना दो, दैट्स इट। वो उसके पीछे कितने रोल लगे हुए हैं पहले किसी ने कॉन्फ़िगर किए होंगे वो सब उसको मिल जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, वो सारी Yes, yes. परमिशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी मेंबर की तरह। मतलब सिर्फ ग्रुप में ऐड कर दो उसको, वो एग्जैक्टली, यूजर को, राइट? राइट। ओके। और हर यूजर को क्या होगा, जैसे कि मान लो जैसे कि आईटी का केस बताता हूँ, आईटी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। तो आईटी में क्या होता है कि जैसे एक यूजर डेवलपर है और एक यूजर है अपना इंजीनियर, मान लेते हैं इसको क्लाउड इंजीनियर या जो भी है, ठीक है, ये इंजीनियर है, ये डेवलपर है। अब इसका क्या है कि इंजीनियर्स को कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज रहती हैं कि वो एज्योर पे काम कर पाएगा और उसको कुछ डेस्कटॉप एडमिन का काम कर पाएगा, इस तरीके से कुछ प्रिविलेजेस हैं। और डेवलपर को कुछ प्रिविलेजेस रहती हैं कि वो कुछ सपोर्ट टिकट रेज कर सकता है, उसका कुछ परमिशंस हैं जो कि वो डेवलपमेंट वाले टूल्स यूज़ कर सकता है, वीएस कोड यूज़ कर सकता है या वीएस यूज़ कर सकता है या इस तरीके के रिसोर्स यूज़ कर सकता है। तो इसको अलग परमिशन है। अब मैंने क्या किया कि एक डेवलपर ग्रुप बना दिया, एक इंजीनियर ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब जो भी मेरा डेवलपर आएगा उसको इस ग्रुप का मेंबर बना दूंगा, तो उसको वो जो डेवलपमेंट टूल्स है वो सब मिल जाएंगे, एक्सेस, उससे रिलेटेड लाइसेंस भी उसको असाइन हो जाएंगे। जब मैं इंजीनियर बनाऊंगा तो उसको उससे रिलेटेड परमिशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो परमिशन एक्सेस कर पाएगा, जैसे कि डेस्कटॉप एडमिन की तरह वो काम कर पाएगा या सर्वर एडमिन की तरह वो काम कर पाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको अलग अलग प्रिविलेजेस असाइन कर सकता हूँ बाय द हैविंग द ग्रुप। यस ध्रुव, यू हैव क्वेश्चन? Yes, sir. Actually, if we are creating a group, is there any term like subgroup, or we have to create a different group for this one? If हाँ, we सब have ग्रुप to भी बना assign सकते some हैं special ग्रुप के permissions. ग्रुप। या आई गॉट योर पॉइंट। ग्रुप का ग्रुप कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ग्रुप। तो जैसे एक ये बताता हूँ आपको, जैसे आईटी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। आईटी के सर्विस डेस्क एक फंक्शन है या सपोर्ट टिकट वाला कुछ सिस्टम है। तो एक ग्रुप आप बना लो आईटी का, ठीक है। उसके अंदर आप सब ग्रुप बना लो डेव और इंजीनियर। तो इस ग्रुप की परमिशंस हैं वो भी इन दोनों को मिल जाएंगी और इन दोनों को अलग अलग परमिशंस भी मिल रही हैं। अगर आप ऐसे Okay. देखते हैं तो जैसे ये टिकटिंग सिस्टम होता है कई कंपनी में, टिकटिंग सिस्टम। तो टिकटिंग सिस्टम पूरे आईटी के लिए होता है। हो सकता है वो डेवलपर को असाइन हो, अगर एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर से रिलेटेड है तो डेस्कटॉप सपोर्ट वाले को असाइन होगी, सर्वर से रिलेटेड है तो कोई किसी इंजीनियर सर्वर जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको असाइन होगी। तो आप सब ग्रुप बना लिए उसके अंदर, लेकिन आपने मेन ग्रुप इसको रखा, इसके अंदर आपने ये सब ग्रुप बना लिए, तो इनकी जो रिलेवेंट परमिशन है वो तो मिल ही रही है जो इन ग्रुप पे है, इसके साथ में इसकी परमिशन भी उनको मिल रही है, ठीक है। और Yes, कंपनी sir. में कंपनी में कुछ ऐसे ग्लोबल ग्रुप भी होता है या कंपनी का एक ग्रुप भी होता है, उसमें उनकी परमिशन भी उनको आप दे सकते हो। जैसे कि कुछ कंपनी का एम्प्लॉय गाइड है या ऐसा कुछ रिसोर्स है, कॉमन रिसोर्सेज दे कैन गेट। ओके, सो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यस मोहम्मद। Okay, sir. सर मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन डीएल एंड सिक्योरिटी ग्रुप? मतलब वो कोलैबोरेशन के लिए काम आता है, जैसे कि आप ऑफिस 365 और वो ग्रुप की बात करें ना, सिक्योरिटी ग्रुप राइट की। राइट राइट। राइट राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, देखो जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है वो सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। ग्रुप लाइक हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। राइट। तो इसमें आपका हो गया कि आपको डिफरेंट रोल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अपना मेंबरशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा टूवर्ड्स उसके हैं। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है ये कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए। और इसमें कोलैबोरेशन कैसे होगा, जैसे कि अगर M365 ग्रुप बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, एक ईमेल, जैसे team1 मान लेते हैं, TEM1@abc.com, ठीक है। ये मैंने एक कोलैबोरेशन ग्रुप बनाया। तो मुझे कोई भी ईमेल, कहीं से भी एक्सटर्नल ईमेल अगर आती है team1 पे, तो उसके मेंबर्स को वो ईमेल चली जाएगी। जैसे 3 मेंबर है उसके, तो तीनों को वो ईमेल चलेगी, तो ये कोलैबोरेट कर सकते हैं इसमें, ये एक फ़ायदा है। तो ये इस तरीके से ग्रुप ईमेल बन जाएगी इनकी, और वो कोलैबोरेशन के लिए। सिक्योरिटीज लाइक रोल असाइनमेंट और लाइसेंस असाइनमेंट और उन सब के लिए काम आता है। ये लाइसेंस असाइन करना है, रोल असाइन करना है ना,
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट असाइन करनी है, वो सब इसमें कर पाऊंगा, इसमें नहीं कर पाऊंगा मैं. दिस इज व्हाट द डिफरेंस. ओके. Fine. All right, so today we are concluding our Entra ID sessions, and you can little bit practice on that, and I think this is more than enough knowledge regarding the Azure point of view. Means Azure admin will not be managing their resources, because most of the companies, they have Entra ID admin, or they do have Office admin, or Microsoft 365 admin. They will be taking care of this collaboration and this part, but just for your interview, just for your exposure, we are discussing about this group type and these things. ठीक है. And I think on this note we can conclude today's session, and see you tomorrow, and we will continue with the new resource type, and Azure की तरफ से हम कल start करेंगे. ठीक है. तो Entra ID point of view, I think we have covered, and whenever we have in Azure anything related to Entra, definitely we refresh this knowledge as well. All right. Okay, thank you for attending. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you. Good night. Welcome. Good Thank night. you, sir. Bye. Good night. Thank you, sir.